Look at your hand right now. Go ahead. Can you see your skin? Of course. Can you see your fingernails? Of course. Do you know there are billions of cells present on your hand? Can you see them? Uh huh. So, are these cells invisible or is there some limitation in our eyes that we can't see them? Let's find out. Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to study why can't we see cells with our naked eyes? What's the issue? So in the last video we studied कि सबसे पहले सेल किसने देखा? So that was Robert Hooke जिन्होंने एक सेल को डिस्कवर किया, जिन्होंने एक कॉर्क स्लाइस ली और अपने माइक्रोस्कोप में देखा that there are small compartments which he named as cells जिनसे मिलके एक पूरा जो है ऑर्गेनिज्म बनता है. So in this video we will study why cells cannot be seen with naked eyes, the limitation of the human eye कि आखिरकार हमारी आंख में ऐसी क्या समस्या है. What is the problem with our eyes that they cannot see small things? If a microscope can, why can't our eyes? And how microscopes help scientists to discover that microscopic world, that millions of microbes and the beyond. So firstly, let us talk about the limitation of our eyes. अब हमारी आंखों में क्या दिक्कत है? Just see in this slide, what I want to tell you is, this is you and this is your friend. जब तक वो आपके पास खड़ा है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं. जब वो आपको दूर जाएगा तो वो आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, आपसे थोड़ा और दूर जाएगा, थोड़ा और छोटा दिखेगा, and at a point the person will become invisible to you. मतलब कि our eyes have a limit. एक लिमिट है हमारी आंखों की देखने की शक्ति की. We can see things up to a certain point, up to a certain small size. उसके बाद हम उन्हें नहीं देख सकते. वो इंसान छोटा होता जाएगा, but at a point it becomes very small कि आपकी आंखें उसे नहीं देख सकती. They cannot see extremely tiny objects. अब अगर हम बात करें सेल्स की, सेल्स तो बहुत ही छोटे हैं ना. How much smaller a cell is? अब ये हमारे पास है एक ग्रेन ऑफ सैंड. डू यू अंडरस्टैंड ग्रेन ऑफ सैंड? सपोज आपके पास मिट्टी है, मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं, है ना, छोटे छोटे छोटे. नाउ दैट वन ग्रेन ऑफ सैंड जिसको हम कहते हैं, एक मिट्टी का कण, उससे भी छोटे हैं हमारी सेल्स. कितना छोटा होता है सोचो. उसको आप फिर भी उसको आप सेपरेट कर सकते हैं. अगर आप थोड़ी सी मिट्टी रखें एंड देन यू ट्राई टू सेपरेट वन ग्रेन ऑफ सैंड, यस यू कैन, but the cell is much smaller than that. उससे भी बहुत छोटा है, so you can't see that, right? Most cells are only a few micrometers in size. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने साइज बताई थी सेल्स की. So our eyes cannot simply detect this small size. ठीक है, that is the reason. यही कमी है हमारी आंखों में कि हमारी आंखें इतनी छोटी चीज देख नहीं सकती. So we cannot see cells. Now if I tell you about resolving power, अब हमारी eyes की ना एक resolving power होती है. How small an object can be before our eyes fail to distinguish it. इसकी simple example मैं यही वाली देना चाहूँगी कि अगर यहाँ तक हमें वो दिखा तो this is the resolving power of your eyes. इसके बाद वो इतना छोटा हो गया कि हमारी आंखें उस इंसान को नहीं देख पाई. ठीक है, that is what is defined as resolving power of our eyes, that how small an object can be. कितना ही छोटा हो सकता है एक ऑब्जेक्ट कि जिसके बाद वो हमें दिखना बंद हो जाए. Now here is an example which I brought for you. अब जब हमारी जो फ़ोन की स्क्रीन है उस पर अगर आप कोई फोटो लें, फोटो गैलरी में कोई फोटो लें एंड यू स्टार्ट जूमिंग इट, आप उसको जूम इन करें और जूम इन करो, एक पॉइंट पे आके जब उसका और ज़्यादा जूम होना बंद हो जाएगा, दैट इमेज विल बिकम ब्लर, वो आपको ब्लर दिखेगी. दैट इज द रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल व्यू. जूम इन, गेटिंग क्लोजर, जूम इन मोर एंड इट बिकम्स ब्लरी एंड अनक्लियर because the camera has limits. Even the camera has limits. वो उससे ज़्यादा जो है इतनी छोटी चीज़ को वो इतना क्लियरली कैप्चर नहीं कर पाता. That is why when we zoom too much we get to see blur photos. Now same happens with our eyes. Your eyes can see big objects clearly but they cannot see the small objects. Small objects इसको दिखेंगे blurred and it is difficult or impossible to see them. Okay. So these two things are which we studied why our eyes cannot detect. That our eyes can't see very tiny things and our eyes have a resolving power. जहाँ तक वो एक चीज़ को छोटा होते हुए देख सकते हैं, but after a certain level अगर उससे छोटी वो चीज़ हो जाएगी तो our eyes cannot detect them.
Now what's about microscope? Microscope में ऐसा क्या है that we were able to see cells through a microscope. We are able to see very microscopic viruses and bacteria by using microscopes. अब माइक्रोस्कोप में एक एबिलिटी है that is to magnify the things. माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखाता है. That is why we can see them. Now, magnify means to make something appear larger than it actually is. Magnifying glass होता था ना, छोटे होते आप खेले हो उससे. अब उसमें क्या है, उसमें lenses ऐसे लगे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को वो बड़ा करके दिखाता है. That is how we can easily see them. Right, same happens with a microscope as well. When scientists place a tiny specimen under a microscope and they observe their details with naked eyes, we can see them very clearly with these eyes only. But फर्क क्या है कि उस माइक्रोस्कोप ने उस बहुत छोटी चीज को हमें बड़ा करके दिया. That is why our eyes could detect it. This is how scientists began exploring the microscopic world. Now, if I tell you about power of a microscope, नाउ सी, अब ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये हम भी हमारी लैब्स में यूज़ करते हैं. दिस इज आई पीस, जहाँ से हम देखते हैं इनसाइड द माइक्रोस्कोप. दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज. अब इन पे होती है मार्किंग. फॉर एग्जाम्पल 4x, 10x, 40x, 100x, कितनी मैग्नीफिकेशन पे आप देखना चाहते हो उस पे आप सेट करोगे इसको. फॉर एग्जाम्पल हियर अगर आप देखें, देन दिस लेंस इज सेट एंड हियर इज द स्पेसिमेन जो कि एक ग्लास स्लाइड पे है. दिस लेंस is perfectly on the top of that specimen और इस पे नीचे से पड़ती है लाइट and that light helps to that lens to detect the specimen और फिर वो करता है इस चीज़ को मैग्नीफाई और हमारी आईज होती हैं यहाँ से हम देखते हैं कि what is the magnified thing that we have to observe. ठीक है. From tiny cells to microscopic organisms, microscope help us to understand life at its smallest level. कि एक छोटे से बैक्टीरिया के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, वहाँ पे भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं. वो सब चीज़ें हम माइक्रोस्कोपी डिस्कवरी के बाद ही समझ सकें. सी हियर, नाउ दिस इज एन अनियन सेल. अनियन सेल, इट इज स्टेन्ड और इट इज सीन एट 40x. दिस इज अ ब्लड सेल. दिस इज अ बैक्टीरिया. ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे और जब आप इन हायर स्टडीज़, वैसे तो +2 में भी होते हैं ये माइक्रोस्कोप वाले एक्सपेरिमेंट्स, बट व्हेन यू गेट इनटू कॉलेज तो आपको मौका मिलता है इन सब ऑर्गेनिजम्स को देखने का, इनको आइसोलेट करने का और फिर इनको ऑब्जर्व करने का, इनकी एक्टिविटीज़ देखने का. We do all these things. I am a biotechnologist and we do these things. We see different type of bacteria, we see yeast सेल्स और वो में कैसे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, इस चीज़ों को हम स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ कोर्स. सो नाउ हाउ माइक्रोस्कोप चेंज साइंस. माइक्रोस्कोप से क्या किया कि साइंस चेंज हो गई. माइक्रोस्कोप के पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या आने लगा. तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि माइक्रोस्कोप के पहले हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को ही नहीं देख पा रहे थे. वी वरंट अवेयर ऑफ दैट ग्रेट रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिफोर माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट कुड स्टडी विजिबल थिंग्स which were visible to them, for example plants, animals या फिर organs which they could see, but they could not see cells, bacteria and blood cells. वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें तो उन्हें पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती हैं. उनके लिए ब्लड था और they were not aware that blood contains so many cells. This is what they were not aware about. After microscope एक completely नई दुनिया सामने आ गई. सोचो ना कि अगर आपको पता चले कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता चले कि एलियंस भी रह रहे हैं यहाँ, दैट वुड बी अ न्यू वर्ल्ड फॉर अस. कि हमारे साथ साथ एलियंस भी रह रहे थे एंड वी हैवंट येट इन्वेंटेड एनी टेक्निक टू सी देम. मे बी दे कांट बी सीन विद माइक्रोस्कोप एज वेल. शायद वो कोई रेज के साथ देखे जा सके. दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज हाउ वी आर इवॉल्विंग. जैसे जैसे इन्वेंशंस हो रही हैं हमारे पास नई नई चीज़ें पता चल रही हैं हमें. नाउ बिफोर 1600, बिफोर 1665 किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इतने छोटे कि वो हमें दिख भी नहीं रहे और उन ऑर्गेनिजम्स में भी सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं. वो भी खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट कर रहे हैं खाने को, उनमें एंजाइम्स काम कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 1 से 2 बन रहे हैं, बहुत नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं उनके. ये सब चीज़ें नहीं पता थी, बट नाउ वी नो कि वायरसेस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं. देयर आर many organisms at microscopic level which could be discovered just after we invented a microscope.
ठीक है, दिस रेवोल्यूशनाइज्ड बायोलॉजी। ऑफ कोर्स बायोलॉजी में एक ऐसी क्रांति आई कि जो हमें बिल्कुल नहीं पता था। अब बायोलॉजी में कैसे इसमें रेवोल्यूशन आई, क्योंकि हमने ऑर्गेनिजम्स पता किए, हमें डिसीजेस पता चले कि जो डिसीजेस आज तक हमें हो रहे थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो कोई जादू नहीं हुआ था हम पे। दैट इज एक्चुअली कि उसको एक ऑर्गेनिज्म ने किया, हमने गलती से वो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर गया, उसने हमें एक बीमारी की। This is what we got to know when we studied these microbes, and that is how biology was revolutionized. That is how we opened many new doors in the field of biology. So now what we learned in this video is why can't we see cells? Because they are so tiny, so small that our eyes have a resolution limit and we can't see beyond that. What is the limitation of our eyes? Limitation of our eyes is also the same, that our eyes has a resolving power. ठीक है, उस our eyes can see an object up to a level when it becomes small, and after beyond that अगर उससे भी छोटा वो organism हो जाए तो we can't see them. Means our eyes cannot detect very small things, they cannot differentiate them. What does a microscope do? Microscope क्या करता है? It magnifies. एक ही चीज करता है कि जो हमारे पास जब भी हमारे पास स्पेसिमन है, ऑर्गेनिज्म है या सेल है जिसे हम देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप उसको 100 टाइम्स 40 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकता है, उसको बड़ा कर सकता है, और फिर वो चीज को हम देखते हैं, हम वो मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं उस ऑर्गेनिज्म की। व्हाई आर माइक्रोस्कोप्स इंपॉर्टेंट? दिस इज व्हाट यू विल टेल मी इन कमेंट्स। आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या हुआ माइक्रोस्कोप्स के बाद जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, एंड आई होप यू वुड लव टू टेल मी इन कमेंट्स दैट व्हाई माइक्रोस्कोप्स आर इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी वन पॉइंट। और एज योर सीनियर दीदी मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूंगी कि कभी भी ना साइंस को मेमोराइज मत करो, आस्क द व्हाई बिहाइंड इट। यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था दैट वी कांट सी सेल्स, लेकिन व्हाई आई हैड टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज यू नीड टू मेक अ हैबिट ऑफ आस्किंग द व्हाई कांट वी सी सेल्स। ठीक है, हम नहीं देख सकते सेल्स को, क्या वो छोटे हैं सिर्फ इसलिए नहीं देख सकते? नहीं, हमारी आईज की एक रेजोल्यूशन पावर है जिसकी वजह से हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। And why microscope is able to show us those cells? क्योंकि माइक्रोस्कोप्स में ability है, उसमें lenses ऐसे लगाते हैं हम कि उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। This is what we learned in this video. And in the next video we will finally entering the world of cell. What is a cell? सेल में क्या क्या होता है, सेल्स क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हम सब कुछ पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and do answer the question I asked you in the comment sections. That's it for today. Thank you very much. See you in the next video.